Good morning, students. Today in Sanskrit, we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, Ko Aru Ka, अर्थात who is healthy. This is a small story which shows the importance of our physical health. It warns us for our bad habits of our lifestyles and food. Our mind and our soul become pure only after cleanliness of our body. The story teaches the children to be aware of their food eating habits and the importance of their physical health. So let's see what is there in the chapter. Today we will do only translation of this chapter. Let's start our translation of chapter number 3, को रुक, अर्थात कह अरुक. ये संधि शब्द है. इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? कह अरुक. हु इज हेल्दी. अरुक अर्थात हेल्दी. को और कह अर्थात हु इज हेल्दी. सो लेट्स सी द चैप्टर. एकः पक्षी अस्ति. देयर इज अ बर्ड. पक्षी मीन्स बर्ड. एकः वन. देयर इज अ बर्ड. सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति. इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई. आकाशे स्काई. सह मीन्स पक्षी के लिए जो सर्वनाम प्रोनाउन यूज किया है वो. पक्षी के लिए कौन सा प्रोनाउन है? सह मीन्स इट. आकाशे अत्र तत्र. अत्र हियर, तत्र देर. गच्छति गोज. सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? इट गोज हियर एंड देर इन द स्काई. सः पुनः पुनः वदति को रुकः. क्वेश्चन मार्क. कः निरोग भवति. इट स्पीक्स पुनः पुनः वदति. पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन. वदति मीन्स सेज और स्पीक्स. सह मीन्स इट. इट अगेन एंड अगेन सेज और स्पीक्स को रुक, हु इज हेल्दी, और हु इज कः निरोग भवति, हु इज विदाउट एनी डिसीज. पक्षी द्वारम द्वारम अटति. द्वारम द्वारम डोर टू डोर. अटति यानी वंडर्स और मूव्स. पक्षी द्वारम द्वारम अटति. द बर्ड वंडर्ड डोर टू डोर. एकम एव प्रश्नम पृच्छति. एकम एव मीन्स it asks only one question. Prashnam means question. Pruchhati means ask. Ekam eva means ekameva, अर्थात only one. He asks only one question. जनाः उपहासं कुर्वन्ति. उपहास means fun. कुर्वन्ति means do. People make fun of it. लोग उसकी हंसी उड़ाते थे. पीपल मेक फन ऑफ इट. फन ऑफ अ बर्ड हु कीप आस्किंग हु इज हेल्दी. कोपी उत्तरम न ददाति. कोपी मीन्स कह अपि. यहाँ पर भी संधि शब्द है. कोपी मीन्स कह अपि मीन्स एनीबडी. उत्तरम answer. न ददाति does not give. So what will be the translation? Nobody gave answer or nobody answers it. पक्षी निराशः भवति. निराशा means disappointed. पक्षी means birds. भवति means happen. So translation will be the bird becomes disappointed or bird disappointed.
We can see one bird over here in first picture. He is wandering here and there, and he is asking people. Bird is sitting here, and people are making fun of the bird. Why? Because bird keep asking who is healthy, who is healthy. Now let's see the third paragraph. सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च means and. Vanam gacchati, goes to the forest or goes into the forest. Upavishati, upavishati means sits. Vrukshe upavishati, sit on the tree. So what will be the translation? He goes to the forest or go into the forest and sits on a tree. वृक्षस्य अधः वैदर्षी वाग्भट्ट अस्ति. वैद्य means doctor. वृक्षस्य अधः, अधः means under. वृक्षस्य अधः under the tree. वाग्भट्ट अस्ति. There was a doctor whose name was Vagbhat. Now do you know who was the Vagbhat? Vagbhat was a guru of Ayurveda, guru of Ayurvedic medicine. So that he was sitting under that tree. Vrukshasya adha Vaidarshi Vaidya Rishi Vagbhattah asti. So what will be the translation? There is a Vaidya Rishi Vagbhat under the tree. Pakshi punah vadati. Koruka, bird again asked or bird again said, who is healthy, who is healthy? Iti. Vagbhatta shrunoti. Vagbhatta shrunoti. Shrunoti means hears. Vagbhat hears what Pakshi or what bird was saying. Who is healthy? Who is healthy? He was asking to everyone. Here is the picture of Vaidarshi Vagbhat, Vaidya Rishi Vagbhat, who is sitting under the tree, and bird is here on the branch of the tree, and he is asking to the Rishi who is healthy, who is healthy. Now next paragraph. Sahavadati, he said, Hita bhuka, mita bhuka, rut bhuka iti. Hita bhuka, the one that takes balance meal. Hit, bhuk means हमें जो भूख लगती है, जिसे हम हिंदी में भूख लगना कहते हैं, तो वो वर्ड कहाँ से आया है? संस्कृत में से. तो हित मीन्स आपके हित में, यानी आपके बेनिफिट में जो बात हो वो. हित भूख यानी ऐसा खाना जो आपके लिए सही हो, आपके शरीर के लिए सही हो. मीत भूख अर्थात द वन हु टेक्स मील इन अ प्रॉपर क्वांटिटी. जितना आपकी ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना ही खाना उसे कहते हैं मित भूख. और तीसरा है रुत भूख अर्थात ऋतु अनुसार की भूख. हु टेक्स द मील अकॉर्डिंग टू द सीजन. इति. सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? सह वदति, he said, balanced meal eater, limited meal eater, and eater who eats according to the season. That means अर्थ अस्ति. That means जिसका अर्थ है यह हितकारी भोजनम करोति, यह मितम भोजनम करोति. That means the person, यह means the person who takes balanced meal.
हितकारी भोजनम करोति, हु ईट्स बैलेंस मील. यह मितम भोजनम करोति, द पर्सन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी. यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, द पर्सन हु ईट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. सह एव निरोगः भवति इति. ही स्टेज और ही रिमेन्स हेल्दी. निरोगः मीन्स जिसको कोई रोग नहीं है वो, अर्थात स्वस्थ मीन्स हेल्दी. तो जो हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख अनुसार खाना खाता है वह निरोगी होता है, या वह निरोगी रहता है, या वह स्वस्थ रहता है. द पर्सन हु टेक्स बैलेंस मील, हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन रिमेन्स हेल्दी. संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति. The satisfied bird comes to the ऋषि. संतुष्टः means satisfied, पक्षी अर्थात bird. ऋषि समीपम near to ऋषि. आगच्छति means comes. The satisfied bird comes to the ऋषि. सह ऋषिम नमति. It bowed to the ऋषि. वो ऋषि को प्रणाम करता है. अनंतरम स्वस्थानम गच्छति. अनंतरम अर्थात देन. स्वस्थानम टू ओन प्लेस. गच्छति goes. Then it goes to its own place. Why? Because he got the answer of his question. Who is healthy? Who is healthy? So what is the answer of who is healthy? The answer is the person who takes balanced meal, who takes meal in proper quantity and who eats according to the season remains healthy. So this answer was given by Dr. or Ayurvedacharya Vagbhat. So in Ayurved they have written who will stay healthy. So in our chapter they have given 3 answers, that one who takes balanced meal, one who takes meal in proper quantity, and the one who takes meal according to the season stays healthy. Let's see the words. Koruka, kaha arukah, who is healthy. Atati, moves. Upahasam, fun. Vaidalshri, doctor or Vaidya Rishi. Hitabhuka, one that takes balanced meal. Mitabhuk, one who takes meals in proper quantity. Rutabhuk, one who takes meals according to season. Swasthanam, at one's own place. विशेष में उन्होंने क्या दिया है, को रुक यानी कह अरुक एंड कोपी कह अपी. ये 2 संधि इस चैप्टर में हमें सीखने को मिली है. तो ग्लोसरी के साथ साथ आपको ये विशेष में आप यहाँ पर चाहो तो आपके रेफरेंस के लिए ऐसे संधि शब्द इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर फिर आप ये 2 वर्ड्स याद कर सकते हैं. तो आज का आपका होमवर्क है, आपको ये पूरे चैप्टर का ट्रांसलेशन आपकी नोटबुक में लिखना है और साथ साथ आपको ये ग्लॉसरी और विशेष शब्द भी लिखना है. लास्ट टाइम बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था कि हम कैसे लिखें ट्रांसलेशन. तो मैं आपको समझा दूँ कि जैसे ये एक पैराग्राफ है तो आप पहले ये पैराग्राफ लिखोगे संस्कृत में और उसके नीचे ही उसके जैसे 4 लाइन में पैराग्राफ है उसी तरह से 4 लाइन में आप आपका ट्रांसलेशन लिखोगे. तो ऐसे ही एक एक पैराग्राफ करके आपको इसका ट्रांसलेशन लिखना है. तो ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिला
कि हम निरोगी या स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कैसा खाना खाने से और क्या खाने से हम निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो सीजनल वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट्स या सीजनल ग्रेन्स खाने से हम निरोगी रह सकते हैं। जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में जो उपलब्ध चीज़ें हैं, जो खाना है, वो खाने से हम निरोगी रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी ग्रेन्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलते हैं वो यहाँ की ऋतु के और यहाँ के वेदर के अनुसार बनते हैं। तो हम इसी वेदर में रहते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है। अगर हम बाहर के देशों के फ्रूट्स खाएं तो हो सकता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने गुणकारी नहीं हो, लेकिन अगर हम हमारे ही लोकल जगह के पके हुए फ्रूट्स खाएं, लोकल जगह पे पकी हुई सब्जियां खाएं, तो वो हमारे यहाँ के वेदर के लिए सूटेबल होता है, जिससे हम निरोगी रह सकते हैं। और बैलेंस डाइट, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कितना, प्रॉपर क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि आज हमें लड्डू मिले तो 10-12 लड्डू खा लिया। एक लड्डू खाने से हमें तकलीफ नहीं होती है, पर अगर एक साथ 10-12 खा लेंगे तो ज़रूर हमारे पेट को तकलीफ हो सकती है। तो वैसे ही जो चीज़ अच्छी लगती है उसे ज़्यादा खा लिया तो हमें तकलीफ हो सकती है। तो ये बात भी हमें इस चैप्टर में उन्होंने समझाई है। और तीसरा क्या है, द वन हु टेक्स बैलेंस डाइट, यानी कि संपूर्ण आहार। आप ईवीएस में या साइंस में पढ़ते ही है कि संपूर्ण आहार क्या है, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उस अनुसार हम संपूर्ण आहार अगर ले तो उससे हम हमेशा के लिए निरोगी रह सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको लिखना है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, तब तक आप इसका होमवर्क करके रखना। स्टे होम, स्टे सेफ।